So how do you keep updated yourself with the trends, or do you go with the trends? You create, you believe in creating trends, you go against the trends. How is your style? अगर आप कभी भी अपने क्लाइंट का मोबाइल फोन लो, उसकी फेसबुक फीड देखो, ही इज नॉट इवन अवेयर ऑफ सच ट्रेंड्स. It is a wedding. It is like, for photographer, I feel it's a very challenging situation. I have a lot of different kind of footage which I show it to them. Do you take an efforts to meet with the planner and the decorator or other people, or who are those people whom you would like to meet and discuss so that everybody is on one page? So I often meet all the decorators. एक बार तो मिलना ही मिलना होता है. How one person selects the right photographer for them, irrespective of budget, whatever their budget may be, but how they can find the best in that budget? What is that they should do? Again, I always tell the bride, आप अपना लहंगा लेने जाते हो, आप 3-4 महीने लगा देते हो. आप दिल्ली की मार्केट घूमते हो, बॉम्बे की मार्केट घूमते हो, पूना का पूरा लक्ष्मी रोड घूमते हो, वन शॉप टू अनदर शॉप. जयपुर जाते हो, कलकत्ता जाते हो, हाँ, कहाँ पे जाते हो ना. Anyone is doing quality work, he will take time, but your end product will always be nice. and what should be the appropriate or ideal size, team size? I think 6+6 we have gone. What's a 6+6? 6+6 we have gone into. I also heard words like HD, then cinematography. So for our viewers understanding, can you explain what all these terms are? सर देखो, एक होता है HD, एक होता है HD, फिर होता है UHD, Okay. फिर होता है 4K, हाँ 4K, फिर होता है 4K. My next question is very important. It's about lighting. Some people prefer shooting with natural light, but if you see, like I do a lot of work with flash, even if it's outdoor. हेलो एवरीवन, वंस अगेन दिस इज रितेश राका. हम आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आ रहे हैं. वी हैव इनवाइटेड लॉट ऑफ वेडिंग एक्सपर्ट्स एंड वी मेक श्योर दैट वी कीप दीज वीडियोस शॉर्ट. चले, लेट्स गो. Hello and welcome everyone. Today we have with us Mr. Robin Saini. He is a hardcore photographer by passion, by profession. Almost 1.5 decade in photography and almost 1 decade in wedding photography. Welcome, Robin. Thank you very much. Thank you. So, Robin, I would like to start with your journey. How you got into this profession, what all have you tried, and how you got into weddings, especially, wedding photography. So, how was your journey? How you started? So my photography journey has been a very shocking to a lot of people because basically I'm a hardcore marketing guy. Over the years, last from 2002 till 2010 is what I did hardcore media marketing events. I worked with a lot of companies, right from shipping to Reliance to Radio City and a lot of other companies. And like a typical marketing guy, last I was working with as a DJ marketing with Radio City, handling a lot of stays. I used to travel 15 days a month, तो प्रॉब्ली हर एयरलाइन के एयर होस्ट मुझे फ्री में खाना देना चालू कर दिया था बिकॉज मैं हर वीक किसी न किसी फ्लाइट पे होता था उस टाइम पे. आई रिमेम्बर इंडिगो एंड किंगफिशर आर न्यूली लॉन्च. तो बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग सो मच, फोटोग्राफी का शॉप तो बस ऐसा हुआ कि पहले एक नॉर्मल पॉइंट एंड शूट कैमरा था और उससे मैं बहुत सारी पिक्चर्स खींचता था. 2005 में इज़ व्हाट आई बॉट इट टिल 2010 एंड देन 2010 में मैं शहीद हो गया, मतलब शादी हो गई. एंड फिर वाइफ ने बोला कि यार बेचारा मेरा हस्बैंड और वो कैमरा उस टाइम गिर गया गलती से, तो थोड़ा सा टूट गया था. एंड मैं उसे टेप लगा के आई यूज्ड टू डू स्टिल टेक पिक्चर्स व्हाटएवर बेस्ट. एंड शी सेड कि यार लेट मी गिफ्ट हिम. आई रिमेंबर वी वर गोइंग टू दुबई फ्रॉम अ कंपनी ट्रिप ओनली एंड शी गिफ्टेड. एंड उसके बाद से वो आज तक बोलती है कि मैंने ना शायद अपनी सौतन को ही गिफ्ट कर दिया रॉबिन को, बिकॉज देन आई गॉट अ सेमी प्रोफेशनल कैमरा. And after that, I never looked. Obviously, I had some information, but once you get an advanced gear, I said, I need to learn more. And that's how it started. This was 2010. Because I was into media and we used to do a lot of, whether they're movie premieres or any kind of celebrity visits or a lot of these events, which happens. So there were a lot of action happening. So I used to just click a lot of pictures. Back then, it was Facebook. बहुत सारी pictures Facebook पे post होती थी.
और यही हुआ, फेसबुक पे उस टाइम काफ़ी वायरल हो गए, बहुत सारी पिक्चर्स वायरल गई। मैंने कुछ अपने जॉक्स, रेडियो जॉक्स की पिक्चर्स खींची, and because radio jocks are already connected very well with the celebrities because they interview them. Correct. So some of very famous photographers commented on those pictures saying that wow, very nice picture, who is a photographer. तो एक normal बंदे के लिए that time I used to not call myself as a photographer, as an amateur photographer. Correct. आजकल तो आई थिंक हर कोई मोबाइल से ये फोटो खींचेगा, अपने आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोलता है. सो वो हुआ एंड देन आई रियलाइज कि मे बी शायद आई हैव एन आई टू इट. Considering the Facebook success of Facebook was the biggest social media platform back then, and I started then doing a lot of different genres of photography. Yes, I spent 1 year totally learning different genres. And you were working also that time. I was hardcore work. Okay. So वो time था जब I used to go to office by 10, by 6:30 office. आने के बाद रात को 1-2 बजे तक I'm studying photography. Oh wow. You know, न्यू ट्रिक्स जो भी है नई. एंड देन उस टाइम का जो भी पैसा था, देन आई स्लोली अपग्रेडेड आल्सो माय कैमरा बिकॉज आई रियलाइज जो वाइफ ने गिफ्ट किया था, दैट कैमरा हैड अ लिमिटेशन. इफ आई वांट टू स्टेप अप द गेम, आई नीड अ बेटर कैमरा और अ बेटर लेंस. यस, उस कैमरे से भी मैंने काफ़ी पिक्चर्स खींची, बट हर एक कैमरे का एक लिमिटेशन होता है. जैसे वो कुछ 50-60 हज़ार का कैमरा था. एंड यस, बिकॉज आई वाज स्टडिंग, आई नो विदाउट स्टडिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में. Then I did a lot of portraits. I did a lot of maternity shoots. थोड़े बहुत fashion shoots भी किए. Bikes, cars, जो भी मिला, काफ़ी सारी चीज़ें की. And then I remember it was July of 2012, where a friend of mine was getting married, and she invited me for her wedding. So it was a destination wedding. I went with my camera, and वहाँ पे already कोई उनका photographer था. Because she was my intern in the company, so I said चलो एक काम करता हूँ, मैं अच्छी पिक्चर्स खींचता हूँ और यही प्रिंट करके से वेडिंग एल्बम में एज अ गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट दे दूंगा. और मैंने वही किया. लकीली जो फोटोग्राफर उसने ऑफिशियली हायर किया था बॉम्बे से, आई थिंक माई पिक्चर्स वर बेटर देन एंड शी लव्ड इट. हर मॉम कॉल में कि बेटा और पिक्चर्स हैं क्या? मैं कहा नहीं मैम, मतलब आप तो थोड़ी बहुत ही पिक्चर खींचते हो, ज़्यादा तो नहीं खींचते. उन्होंने हर फंक्शन की थी. और कभी you are also very excited because first time I was shooting a wedding also. Correct. As an unofficial photographer. As a friend, as a prize. मेरा objective था अच्छी पिक्चर दूंगा, उससे प्रिंट करूंगा, as a wedding album गिफ्ट कर दूंगा. So this was a July wedding. लवासा में थी. I remember 6-7 July की wedding थी. And I think that wedding kind of changed the entire thing because वो सारी लड़कियां जो होती हैं उनकी एज Similar age थे. Correct. उसकी दूसरी फ्रेंड की अक्टूबर में शादी थी. And they called me then. Once randomly I get a call saying that, hi, आपने उनकी नेहा की wedding shoot की थी. said yes. मैं कहा नहीं मैम, मैंने शूट ही नहीं की. मैं वही एक्सप्लेनेशन कहते नहीं, हमें पता है आप ये एज अ वो करते हो, आप आइए और आप हमारी वेडिंग भी, मेरी बेटी की वेडिंग है, आप वो शूट कीजिए. मैं कहा नहीं मैम, मैं मिलता हूँ पहले, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी वेरी वेरी क्लियर कि भाई क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे. मैं कर रहा था. अच्छा, इन बिटवीन मैंने 1-2 लोगों के और ऐसी किसी की शादी में गया तो मैं पिक्चर्स खींच रहा था. बट आई नो कि इट्स अ चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज. और मुझे मेरी लिमिटेशन पता थी कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आप उस टाइम पे बाकी वेडिंग फोटोग्राफर्स का भी काम देख रहे हैं. करेक्ट. तो आई रिमेम्बर वेरी स्ट्रेंजली, मैं ऐसे बैठा हूँ सोफे पे और अंकल मुझसे पूछते हैं तो 3 दिन की वेडिंग है, बताइए आप क्या चार्ज करोगे. अब ये तो दिमाग में नहीं था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे, पैसे भी देंगे और ये भी होगा. तो अच्छा पैसे भी देंगे ऐसे ही मतलब आई थॉट कि पता नहीं क्या होगा कुछ ना कुछ पैसा. आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. तो क्योंकि आई वाज इनटू मार्केटिंग एंड हम लोग अपने इवेंट वालों को उस टाइम पे कोई एक इवेंट होता था तो 7,000 रुपीज़ देते थे पर डे के हिसाब से जो चार्ज होता था. आई थॉट यार शायद मैं अच्छी पिक्चर्स खींचता हूँ ज़्यादा, तो 10,000 रुपये का होगा शायद मेरा. हम अपने फोटोग्राफर्स को 5 से 7 देते थे इवेंट वालों को. तो आई थॉट चल ठीक है, 3 दिन के 30,000 रुपये गुड. हाँ ठीक है यार. और सैटरडे संडे है और मैं तब से सैटरडे संडे को ही शूट करता था बिकॉज ऑफ वर्क मीडिया में, मंडे टू फ्राइडेज वर्क. और मैंने बोला अंकल 30,000 एंड ही assumed I said 30,000 पर डे. I said चलो ठीक है 90,000, कोई डिस्काउंट हो सकता है? चलो ठीक है नीस, चलो आप कर लो. तो फिर आई वाज लाइक वो मैन, दिस इज नॉट बैड.
मतलब तब 1 लाख रुपए तो तब नॉर्मल सैलरी थी। ये तो यार 3 दिन में मतलब फ्राइडे आधा करना है, सातवें संडे की शादी करनी है, फ्राइडे को ब्राइड की मेहंदी है, सातवें संडे को शादी है। यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार। और मैं कैलकुलेट करने लगा, अच्छा ये 90,000 मिलेंगे, क्या लेना है, चल ऐसे लेना है, कौन सा है। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन बीइंग इनटू मार्केटिंग। देन आई वेंट डीप इनटू कि ये बिजनेस हो सकता है क्या। करेक्ट वो जैसे मार्केटिंग में आप बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, करेक्ट यू नो, कि कितना पैसा आएगा नहीं आएगा। बड़े सारे फेक मेल्स भेजे लोगों को पोर्ट्स लेने के लिए, यार ये लोग तो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज कि पैसा भी इसलिए कमा रहे हैं बिकॉज दे हैव गुड अमाउंट ऑफ गेयर। करेक्ट फिर मैंने सर अपने आप को 1 साल दिया, और उस 1 साल में मैंने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लोगों की शादियां शूट की। बिकॉज वो एक हुई, फिर किसी वो फेसबुक पे डाली तो और को मिला, यू नो, आई मीन इट वाज वेरी वायरल। बट मैं सैटरडे संडे को ही करता था, लिमिटेड ही करता था, बट जो भी पैसा आता था ना आई पुट इनटू द गेयर, ओके क्योंकि गेयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपके पास। अब मेरा आइडिया था कि मैं क्लाइंट को बोलूँ, सर आप मुझे कोई भी लोकेशन दे दो, आई कैन कम आउट विद गुड पिक्चर्स। देन द सेम थिंग ऑल्सो गोज विद लाइटिंग। यू हैव टू बी सो कॉन्फिडेंट एज अ फोटोग्राफर, बिकॉज क्लाइंट सोचता है व्हेन यू से फोटोग्राफर आप अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो। आप ये नहीं बोल सकता अरे नहीं सर ये तो लोकेशन ही नहीं है, वहाँ पे आप खुद जेल का काम कर दो। फिर मैं लाइटिंग भी बहुत सीखी, बहुत सारे पेड कोर्सेज लिए जो आजकल लोग नहीं करते हैं। वो बोलते हैं नहीं सब कुछ फ्री में होनी चाहिए, बट फ्री में नहीं होती, यू नो। अगर आपको कुछ सीखना है यू हैव टू पे सम मनी फॉर इट। मैं कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे गया, मुझे ऐसे फोटोग्राफर से 1-to-1 सीखने के लिए because बहुत कुछ मिलता है। यू नो आपको जब आप किसी के पास जाके सीखते हो, देन यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स, बिकॉज अब यूट्यूब पे आप कितने मर्जी वीडियो देखो, यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज समथिंग और अदर। एंड देन 1 साल में आई वाज, मतलब यू कैन से कि फ्रॉम एमेच्योर आई वाज काइंड ऑफ इन दैट प्रो लीग। करेक्ट और उस टाइम पे एक और चीज़ ऐसी हुई कि मैंने ना हमारे एक किसी फोटोग्राफर जो ऑलरेडी प्रोफेशनल थे, उनसे किसी चीज़ के बारे में कुछ पूछा, तो उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि अरे तुम्हें क्या आता है, तुम्हें नहीं आ पाएगा, ये नहीं तुम्हारे बस की बात। तो ना वो चीज़ें मुझे बहुत हर्ट हुई कहीं ना कहीं, कि आप कैसे होता है समटाइम्स इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड, लाइक इफ यू सी माई रील्स आई शेयर एवरीथिंग। या मेरी जो टीम है, जब आज मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन देता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं फोटो खींचूँ या टीम का कोई भी बंदा खींचूँ, इट विल बी एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने सारी उनके साथ शेयर की है। तो क्लाइंट शुड ऑलवेज फील कि उनकी पूरी वेडिंग ए टू जेड एग्जैक्टली सेम टाइप की लग रही है, ये नहीं कि एक पिक्चर अच्छी है या एक वीडियो फ्रेम अच्छा है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो ना मुझे बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज द वे ही टोल्ड मी, ही पुट मी रियली रियली डाउन। तो शायद एक वो भी एक पॉइंट था लाइफ में, कैसे लेट मी प्रूव हिम रॉन्ग, लेट मी बी अ बेटर फोटोग्राफर देन दैट गाय। करेक्ट करेक्ट सो कभी कभी ऐसा होता है, वही हुआ। आई हैव नो आइडिया कि एक टाइम पे वो जयपुर जोधपुर बड़ी बड़ी शादियां करता था, बट आई नो नाउ ही इज नोवेयर, ही इज स्टक टू दोस वेरी स्मॉल 2-3 लाख वाली वेडिंग, नो टीम, वो सिंगल ही बंदा है। प्रॉब्ली वो हर बंदे की पर्सनैलिटी भी वैसे ही है। अगर आपके मन में वो है ही नहीं कि मैं किसी के साथ शेयर करूं, देन तो अगर ऐसा होता तो अंबानी इतना बड़ा नहीं होता। His vision he shared with the entire team. Correct. And that is how the company has grown. So that's how it happened. 1 year later, 2013 is when I decided that I should say bye-bye to my company, Radio City. Boss बहुत गुस्सा थे because मैं DJ marketing था और शायद मैं GA marketing बनने वाला था. And I said, नहीं, let me just take this step. Because there was good amount of money which was coming. वो एक वीक में उतना पैसा आ जाता था जो आप पूरे महीने में कमा रहे थे. So I said, yeah, let's jump. And उसके बाद I never looked back. And the idea was also कि अब जो मैंने सीखा है, धीरे धीरे टीम को ग्रो करो. तो धीरे धीरे पहले एक बंदा आया, फिर माई वाइफ ज्वाइन, फिर 2 बंदे आए, फिर एडिटर्स आए. तो यू नो, बिकॉज अगर आपको बड़ी वेडिंग्स पिकअप करनी है तो क्लाइंट सिर्फ आपको नहीं देखते, बिकॉज दे स्पेंड करोड्स ऑफ मनी on big fat weddings and stuff. They want उनका पूरा experience बहुत अच्छा. Correct, correct. What I've realized from my marketing days is कि बस it's all about experience. वही चीज़, वही जीन्स आप एक लिवाइस के शोरूम में जाके लोगे तो आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा है, बट वही आप जीन्स से किसी नॉर्मल शॉप में लोगे, वो एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई पीपल प्रेफर the brands. branded stuff. So I said I need to build a brand which कम करो weddings but give good quality product. So that was always the case. Even if you check on my website, I say
We don't shoot 100 weddings, we don't shoot 50, 40 weddings, 15-20 weddings साल के, but limited clients who understands my vision, and that is why I also say कि 2-3 घंटे I will come, give you the entire presentation, show you everything. Correct. How your end product will look like, not what is on my Instagram. Correct. You know, because वो तो हर एक मूवी का टीजर होता है, हर मूवी का टीजर सुपर हिट है, but not necessarily movie super hit. Yes. So exactly, and that's how I think it has helped. But again, ऐसे उसमें शायद you might not make too much money because you know प्रीमियम में आप you make money. I'm not saying, but कुछ लोग वो होते हैं जो साल की 50-100 वेडिंग्स कर रहे हैं, वो वॉल्यूम वाला गेम खेलते हैं. Correct. शायद क्वालिटी नहीं है, वो क्लाइंट वापस आए भी नहीं. लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स आर रिपीटेटिव क्लाइंट्स या रेफरल के, Referral. तो वो फर्क पड़ता है. पड़ता है. Correct. So when you say that you started 2005 से आप हल्का फुल्का चालू कर दिए थे, ठीक है, तो आपने वेडिंग ही क्यों चुना? Why did you choose only wedding, or there was other options also, or you wanted to be everywhere, or how it was? So sir, I wanted to actually do fashion. Okay. Okay, and I tried my hands also in my initial days. Probably मेरे Facebook पे हैं कुछ उस type के images. But then I realized that with the amount of gear which I had, I can't do fashion. Okay. Okay, fashion requires lot of expensive cameras, lot of expensive lightings, and lot of other cost. और मुझे वो ऐसे काम चलाओ के फैशन के लिए नहीं करता जो आजकल लोग करते हैं. You know, I said if I want to get into this, and if I'm forming a company, तो सामने वाली कंपनी ये ना सोचे कि जब मुझे हायर करिए, अच्छा ये तो सिर्फ इतना ही पार्ट कर पाएगा. हाँ. अभी जैसे आज वेडिंग में मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं मैं सिर्फ छोटी वेडिंग्स, आप मुझे एक 10 दिन की वेडिंग, सो जितने 1000 लोगों की वेडिंग को 10,000 लोगों की वेडिंग, आई कैन हैंडल इट. सो आई वांटेड टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग कि उस चीज में जाओ जहाँ पे आप यू कैन डू एंड टू एंड एवरीथिंग, नॉट सम पार्ट ऑफ इट. और फैशन आई रियलाइज कि थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो, बट अगर हाई प्रोडक्शन करना है तो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व टू इट, और फिर आप फायदा नहीं है उसमें. सो देन आई and then meanwhile this incident happened which I told you. Correct. And then I said this is not bad. Yeah. चलो तो ये this is better. Okay. Yeah, I slogged my ass. 18 घंटे काम, वीकेंड्स पे बहुत एडिटिंग अपने आप करनी पड़ती थी. Okay. But then yeah, it takes time. You know, हर एक चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है जब आपको रिजल्ट्स मिलने लगते हैं. ऐसा नहीं होता कि day 1 से मिलते हैं. Correct. तो that's how it is. Yeah. And stay loyal. मतलब अगर आप झूठ बोल के क्लाइंट से काम ले लोगे तो शायद उस टाइम तो ले लोगे, बट वो क्लाइंट आपको कभी भी आगे रिकमेंड नहीं करेगा. Correct. So in your business, especially when we talk about weddings, there's a lot of competition. There are a lot of people, a lot of trends which come and go. So how do you keep updated yourself with the trends, or do you go with the trends? You create, you believe in creating trends. You go against the trends. How is your style? So what happens is, yes, there are a lot of trends. Yeah. Okay. But ये जो trends है ना, this as a photographer, because we are into this industry, we keep seeing such trends. Okay. I always tell everyone in my offline classes also, now I've been a mentor with a lot of brands and ambassador. So I take a lot of offline classes. I say that अगर आप कभी भी अपने क्लाइंट का मोबाइल फ़ोन लो, उसकी फेसबुक फीड देखो या उसकी इंस्टाग्राम फीड देखो, he will follow some different people only. He has no event planners, he has no photographers, he has normal people. He is not even aware of such trends. He might be. So it is your, as an artist, you have to educate them. He said, this is what is happening currently. Correct. Now there are various sources जहाँ से आप ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो. आप कोई ब्लॉग पोस्ट करो, यूट्यूब या किसी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, and then tell them that so this is what we can do, or this is what I can do. Yes, this is a trend. People nowadays copy, and there is nothing wrong if you copy. You can add your own version to it. Correct. But don't force it on a client. ये अगर तो क्लाइंट को वो पसंद है तो करो, फोर्सफुली मत करो. Correct. बिकॉज ये गलती मैंने भी शायद इनिशियली की. वो ट्रेंड था, अरे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, एंड आई लॉस्ट अ इट. बिकॉज लाइक यार पता नहीं क्या अजीब से करवा रहा था, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, यू नो, बिकॉज आई थॉट ओ एवरीवन इज डूइंग इट, तो आई शुड आल्सो डू Correct. एट एन एक्सपेंस ऑफ क्लाइंट. बट क्या पता क्लाइंट को बहुत सिंपल ही कुछ पसंद हो.
they want something else. So it's always good, like जैसे हम किसी साड़ी की दुकान पे जाते हैं, वो बंदा आपको दुनिया भर की साड़ी दिखाता है, पर नॉट नेसेसरी ना आपको एक बहुत ही हैवी वाली या कभी कभी शायद लेडीज को बहुत सिंपल वाली भी कुछ पसंद आती है. Correct. तो you show them, but ask them what do they like. Correct. And then, so this has been my policy from last 10-12 years कि दिखा दो, be updated about what is the latest trend and tell them what is possible, what is not possible. Yeah. So what is the latest trend now in weddings? I think latest trend what I've seen is लोगों को ना एक तो होता है वो सेम डे डेट वाला पड़ना. सो सेम डे डेट में भी क्या होता है कि आपका दोपहर का फंक्शन हुआ, बाय इवनिंग के फंक्शन चालू होने से पहले वी गिव देम द अपडेटेड रील और द एंटायर टीजर. बट अभी उन्हें ये चाहिए होता है कि हमें ना फटाफट मोबाइल पे ही आप शूट करो और फटाफट विद इन द फंक्शन ही कोई ट्रेंडिंग गाना ले लो और डजेंट मैटर वो उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग तो वो ट्रेंडिंग एल्गोरिथम में चला जाता है, इट गोज मिलियन व्यूज और प्रॉब्ली 100-200K. So that is what client wants. Okay. So I said, they asked me also, can you do it? I said, no, I cannot do it. There are genuine people who do it. Okay. And अब you decide what you want to do with it. Because उस टाइम में जब वो टीम आके आपके मोबाइल पे शूट कर रही है, they are eating up your time, Correct. right? They are eating up our time also. That memory is only for the Instagram right now. A mobile memory. Correct. See where are, if you see the technology, wedding videos or picture are actually for 2-3 generations. देखते हैं ना आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी देखेंगे, 3 जनरेशन तो हम देखते ही देखते. Definitely. तब तक तो हम किस जनरेशन में पहुंच जाएंगे. तो अगर आज हम आपको 8K पिक्चर्स एंड 4K वीडियोस दे रहे हैं, बट आप जो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे आप HD पे जा रहे हो, आप गिर रहे हो क्वालिटी में, तो वो क्वालिटी 3 साल मतलब 3 जनरेशन के बाद कहाँ पे टिक रही है. आप सिर्फ अभी कुछ एक अपने आप को मॉनिटरी हैप्पी करने के लिए वो करना है. Rather, if you give us time, we'll shoot much better with that and give it to you. This is something which we share with you. Correct. Correct. कि this is my opinion. Same thing, a lot of makeup artists also does. Correct. ब्राइड को रेडी कर दिया, आधा घंटा उन्हीं का ही मेकअप, 4 पे रील्स बना रहे हैं. तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर प्रमोटिंग देमसेल्फ For marketing. Yes. फॉर मार्केटिंग. दे हैव पेड. तुमने मेकअप किया और निकल जाओ. लेट द फोटोग्राफर यूज दैट हाफ एन आवर टू टेक मोर ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम. रादर यू विल बी शॉक. मैं तो BTS ही बहुत मेरे पेज पे अगर आप BTS नहीं देखोगे, वैसे उसके जगह पे ना लेट मी गिव द क्लाइंट एक्सपीरियंस बेटर. उस टाइम पे मैं और थोड़ी सी पिक्चर वीडियोस लेके क्लाइंट को दे देता हूँ. तो एंड देन इफ द क्लाइंट सेज कि नहीं हमें थोड़ा बहुत चाहिए, वी आर ओके, अगर हमें तो देन दैट इज फाइन. Obviously. Then that is fine. At the end of the day, client is king. Then we say कि चलो आप आधे घंटे में 15 मिनट हमें दे रहे हो, then that is fine. But as I said, ना you put forward that point. Correct. So can both the things coexist, where you also do your job and the other person who is doing on a camera, a specialized person to do the reels, he also does his job. Is it possible? Yes, it is possible. As I said, ना कि the client has to decide. They are the ones who are paying the money. Correct. If they want both, then why not? They know कि yes, मैं अगर मैं रॉपिन को आधा 1 घंटा देने वाला था for pictures and videos for the couple portrait, but अब मैं नहीं दे पा रहा हूँ. अब मैं अगर उन्होंने आपको भी आधा 1 घंटा दिया और आप भी शूट कर रहे हो, और समझो मैं हूँ दूसरा फोटोग्राफर हु इज डूइंग इट ऑन रील और आई एम आल्सो शूटिंग ऑन कैमरा द सेम टाइम, इज इट पॉसिबल? आई एम जस्ट आस्किंग. केसेस होते हैं जहाँ पे वो पॉसिबल होता है. Okay. Because no matter whether you're shooting pictures or videos, your eye contact is very important in the video. करेक्ट. I'm telling you to do something like this. You're looking at me. Even if the side वाला बंदा is shooting it, the possibility of he getting the right, because sometimes that have you ever watched a movie जहाँ पे there is no eye contact? नहीं. मैं ऐसे करके बात कर रहा हूँ और यहाँ से कैमरा मुझे शूट कर रहा है, तो people will not, no matter I might be the best speaker in the world. Correct. But अगर मैं आपकी तरफ देख ही नहीं रहा हूँ, इतने देख के बात कर रहा हूँ, तो वो eye contact is very very important. People connect more with you. Correct. So this is something which you have to tell. Someone can shoot, which is fine, but they will not get that great footage as compared to when you have a direct eye contact with someone. So you mean to say that as a client, one, he decides कि whether he wants. आप ऑप्शन दे दो, आप उनको सारी ऑप्शन दे दो. हर एक ऑप्शन को बोलो कि सर व्हाट इज अ गुड पॉइंट, व्हाट इज अ बैड पॉइंट. Okay. Let them decide. Decide. It is their wedding, it is their money. We as an artist
are there because we have been into the similar situation for a long time. Correct. So the idea is कि जब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ ना, मेरा ये होता है कि मैंने अपने सारे कार्ड्स रख दिए सामने क्लाइंट के. अब मैं क्लाइंट को चॉइस देता हूँ कि सर आप डिसाइड कीजिए. If they agree on the budget, well and good. If they don't, when I move out and some other one comes, so they compare. कि रॉबिन ने हमें सपोज ये 100 चीजें बताई थी, बट ये बता तो हमें सिर्फ ये 10 ही बता रहा है, ये 40 या 50 बता रहा है. तो once you open the entire platter कि ये I can offer, this is what is the best. So client also starts thinking About it. Yes. Okay. So, and when it is a wedding, it is like, for photographer, I feel it's a very challenging situation, because when you do a product shoot or something, so object is in your hand. So subject, what do you call subject, right? Yeah. Subject is in your hold. You can control. But in weddings, it's not like that, because it's human. You never know, somebody's interfering in between, and so those kind of situations, sometimes light is not in your control. It is a outdoor wedding or indoor wedding or whatever it is. So how do you make sure that you still give the best quality? So in that case, when I give a presentation to a client, I have a lot of different kind of footage which I show it to them. How not to do your function, whether it is indoors, whether it is outdoors, what kind of lighting is the best, probably what kind of background will also do. Suppose if you're doing a Goa wedding, what is the best time to be on a mandap? कि अगर आप बोलो कि मेरी तो बारात ही चालू हो रही है 5 बजे, तो भूल जाओ कि आपको सनसेट वेडिंग मिलेगी. आपको बारात ही 3 बजे चालू करनी पड़ेगी. I know it will be sunny, but by the time you reach the mandap, it will be 5:30. वो वहाँ पे वो 6 the sundowner. Correct. मैंने अपनी लाइफ में इतनी बीच वेडिंग्स की हैं, मुश्किल से 2 वेडिंग्स ऐसी हुई हैं जहाँ पे हर कोई बोलता है कि सनडाउनर करना है, बट जब तक आप मंडे में पहुंचते पूरा अंधेरा. एंड दैट इज वर्स्ट बिकॉज पीछे पूरा डार्क है. There is no point. So these are things which you have to tell. The same thing when you do sangeet or any kind of lighting, which you said bad lighting, you tell them, ma'am, see this, when you go to a party, you have those purple, green lights on your face, right? Correct. In any party which we Yes. And then you have a beautiful, nice, soft, warm light. So you tell them कि you have to tell your planner that I always need a nice, warm light on me. There are instances where कभी-कभी लोग वो बहुत सारी fog machines या I think छोटे-छोटे particles आते हैं. Correct. Bubble machines. तो ऐसे कि कपल के टाइम पे उनको ज़्यादा मत यूज करो. Okay. अगर करना है ना तो कपल के पीछे ही करो. बिकॉज आई हैव सीन दैट इफ दिस इज अ स्टेज, कपल यहाँ पे डांस कर रहे हैं, फोटोग्राफर्स है, अच्छा कोई शॉट आया यहाँ से उड़ा दिए. अब सर ऐसा कोई कैमरा नहीं है वर्ल्ड में जो मतलब वैसे वो एक तो हजारों की लाखों की संख्या में गिरते हैं, सबके अच्छे पिक्चर है बट कपल के सामने सारे अनलेस कोई फोटोग्राफर इज टेकिंग इट फ्रॉम एयर, Yeah. which we also have, but that these are things which you have to tell them Correct. that कि वो कंट्रोल होनी चाहिए या वो थोड़ी सी पीछे से जाए, या कभी कभी वो जो स्मोक ज्यादा आता है कि कपल के टाइम में दैट स्मोक गाय सो एक्साइटेड Correct. कि नॉर्मल उसमें वो थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं कि वो पौन तक आए. कपल के टाइम में वो इतना छोड़ता है कि कपल ही नहीं दिखाई देते. तो वो डांस ही तो दिस ओवर द इयर्स वी हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ दिस फुटेज. Yes. सो एज आई सेड ना, व्हेन आई से 2-3 घंटे में लेता हूँ, मैं यही सब चीजें एक्सप्लेन करवाता हूँ कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. हाउ यू कैन मेक लाइक अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपने एक सिंपल फ्लावर वाली बैकग्राउंड लगा रखी है, तो वो फ्लावर वाली बैकग्राउंड में भी आप कितनी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो या वीडियोस ले सकते हो, एज कम्पेयर टू आपने बहुत ही अच्छा स्पेंड कर लिया, पीछे 10-10 लाख का कर लिया, बट see this is how your footage looks like because of some basic thing which I show them by video. Correct. कि देखो इतनी अच्छी बैकग्राउंड थी बट फायदा ही नहीं हुआ इसका, whereas this is a normal background and it looks so nice. तो ऐसे जब आप एग्जांपल्स लोगों को दिखाते हो ना, तो then people understand much more कि oh, and then they know that yes this person has actually shot and they relate more Correct. कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना. Correct. Thank you very much for watching this episode. I hope you enjoyed it. Please don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको लगता है कि ये content किसी के लिए important है, please share with them. And in case if you want us to cover a specific topic or content, please comment below. Thank you.